Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So today we are back with a new initiative, that is Daily Current Affairs MCQ, and today we will cover the MCQs for the 11th July 2023. Let's see the first question. So the first question says the term crown jewels is often mentioned in the news is related to या in context of, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये टर्म जुड़ा हुआ है, किसको बुलाया जाता है क्राउन ज्वेल्स. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज WTO. ये 10 जुलाई के द हिंदू में इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है. ओके, सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट. सो द करेक्ट आंसर इज A, WTO, and in the description, dispute settlement system of WTO is also known as WTO's crown jewels. crown jewels क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, एपिलेट बॉडी एंड एडजुडिकेशन बॉडी. ओके, तो इन दोनों को क्राउन ज्वेल्स बोलते हैं. अब कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसेस कैसा है? हाउ डज इट वर्क देयर? वंस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड, डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड थ्रू आइदर म्यूचुअल एग्रीमेंट और थ्रू द एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मीन्स panel of judges sit together and then they decide on something and that will be binding on all the parties involved. Next, WTO has a robust dispute settlement mechanism with over 350 rulings issued since 1995. पहले तो ये 1995 में बनाया गया and then तब से लेके अभी तक 350 rulings पे ये अपना dispute settlement कर चुके हैं. The process involves consultations. Consultation के through चीज़ें होती हैं. Adjudication by panels, that is adjudicating body, first crown jewel, and third is appellate body. Appellate body मतलब अगर adjudication के बाद one of the parties is not satisfied, they can go to the appellate body and there with their concern. Okay, and WTO's appellate body was established in 1995 and its reviews appeals against the judgments in trade related disputes of WTO. It consists of 7 members and focuses on legal interpretations rather than the re-examining evidence. मतलब evidence के केस में नहीं जाते, ठीक है, एक तरह से legal interpretation करते हैं, ठीक है, जो legally चीजें interpret करके जो solution सामने आता है उस पे, and this can uphold, modify and reverse the findings of the panel. Countries involved in a dispute can appeal. Okay, and this is applicable only on the WTO members. ठीक है, so this is all about the WTO's appellate body and this article was regarding the एक तरह से dysfunctional था अभी तक WTO का appellate body because US was blocking its membership, appointment of the members because it does not want to trade multiculturalism to get promoted and USA wants to maintain its dominance over the world trade market. Okay, let's see the next question. Next question says with reference to the threads. What is this threads? काफी चर्चा में चल रहा है, आपने काफी सुना होगा. Reference to the threads mentioned in the news, which of the following statement is incorrect? आपको incorrect बताना है, यहाँ पे ध्यान रखना है. This is incorrect statement आपको identify करना है. Threads is a text-based public conversation app launched by the Meta, that is Facebook. फेसबुक का पुराना नया नाम है मेटा. तो ये एक टेक्स्ट बुक बेस्ड पब्लिक कन्वर्सेशन ऐप है, इसने लॉन्च किया है मेटा ने. ट्विटर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म विद मोर कंट्रोल ओवर यूजर एक्शंस एंड कंटेंट मॉडरेशन. यानी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है और बट एट द सेम टाइम इट मेंटेन्स कंट्रोल ओवर द एक्शंस एंड द कंटेंट क्रिएटेड बाय द यूजर्स. थर्ड इज थ्रेड्स, मैस्टोडॉन and potentially Blue Sky offer decentralized features and user data portability. None of the following statement is incorrect. ठीक है, तो ये तो कुछ competitors के नाम हुए of the Twitter and others. ठीक है, इसमें जो wrong statement है और इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है this is particular option B because Twitter is a centralized platform, not the decentralized. आपके पास आपकी हिसाब से चीज़ें चूज करने का flexibility नहीं है ट्विटर पे. मतलब जो भी ओनर है, द टीम डिसाइड्स व्हाट कंटेंट कैन बी पोस्टेड एंड व्हाट कैन बी रिमूव्ड, तो दे हैव फुल राइट्स ऑन इट. ठीक है, और यहाँ पे ट्विटर में जो है वो यूजर डेटा पोर्टेबिलिटी भी नहीं है. रेस्ट अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन. करेक्ट आंसर इज बी एंड ऑप्शन इज करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है. सी ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि ट्विटर इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म. ओके, लेट्स सी द. और ये है आपका थ्रेड का नई जो ऐप लॉन्च हुई है मेटा की. ठीक है, इंस्टाग्राम के सारे यूजर्स 2 दिन में 70 मिलियन से ज़्यादा साइन अप हो गया है. दिस इज ट्विटर, दिस इज फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर अगेन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट लॉस इन ट्रॉपिकल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है आपको, और ट्रॉपिकल एरियाज में जो फॉरेस्ट लॉस हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी फॉरेस्ट स्टोर मोर कार्बन देन द अदर फॉरेस्ट। ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉरेस्ट है उसकी अगर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो तो उसमें आपको ये वाला आप आंसर क्वेश्चन आराम से आंसर कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज प्राइमरी फॉरेस्ट स्टोर मोर कार्बन देन द अदर फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस इज रिवर्सिबल, मतलब जो भी आपका फॉरेस्ट लॉस हुआ दैट कैन बी रिवर्स्ड, दैट कैन बी रिसाइक्लेबल, मतलब आप फिर से उसको मतलब रीऑब्टेन कर सकते हो। फॉरेस्ट लॉस इन ट्रॉपिकल एरियाज इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2022 एज कंपेयर टू 21। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल एरियाज लॉस्ट 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर इन 2022। इसमें से अगर देखें तो बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस भी आप इसको आंसर कर सकते हो। प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस इज रिवर्सिबल, ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, बिकॉज एक बार जो आपने फॉरेस्ट काट दिए, ठीक है, उसके बाद आप कितने भी नए फॉरेस्ट लगा लो वो उस चीज़ को मेकअप नहीं कर पाएगा उतना जो कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, मतलब कार्बन कैप्चर या कार्बन एमिशन का जो लेवल होगा वो गैप जरूर आएगा भले ही आप कितने भी नए फॉरेस्ट लगा लो। ठीक है, दैट्स व्हाई प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस इज नेवर रिवर्सिबल। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल। सो you can reverse the situation to some extent only, not fully। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज द डेटा। पहले तो स्टेटमेंट करेक्ट जो क्यों नहीं है आप देख लो। प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस इज ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, इट कैन नॉट बी रीजुवेनेटेड इन द सेम फॉर्म जैसे लॉस हुआ। ठीक है, आपने एक बार पेड़ काट दिया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड टू द बैक प्रीवियस एक्सटेंट। अब सम डेटा अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट लॉस 2022 में ऑलमोस्ट 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट इक्विवेलेंट टू द 11 फुटबॉल फील्ड्स पर मिनट इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ है। एंड जब आपका जो प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस एरिया है दैट इंक्रीज्ड बाय 10% एज कंपेयर टू 2021 एंड दिस रिजल्टेड इन 2.7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। ओके, जो इक्विवेलेंट है इंडिया के फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन के बराबर। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कमिटमेंट्स पे आपका क्या प्रोग्रेस है, कैसे मेजर करता है। सो द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू मीट इट्स गोल ऑफ एंडिंग डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। तो ये सब सारे कंट्रीज ने मिलकर दिस डिसीजन वाज टेकन कि हम 2030 तक मिनिमम ऑलमोस्ट एंड कर देंगे डिफॉरेस्टेशन। एंड सेकंड टारगेट ये था कि 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को रिजुविनेट करेंगे या रिस्टोर करेंगे। बट हम दोनों ही चीज़ों पे फेल होते नजर आ रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एनुअली, अगर ये अचीव करना है तो। बट अभी तो उल्टा डिफॉरेस्टेशन 10% बढ़ रहा है कम होने के बजाय। ओके, सो दिस इज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग LMV3 दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेज ऑफ LMV3 कंसिस्ट ऑफ 2 S-200 बूस्टर्स दैट यूज लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है, इंजन की बात कर रहा है, मतलब 3 स्टेजेस हैं इंजन, और उनमें कौन से तरह का फ्यूल यूज हो रहा है उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेज ऑफ LMV3 इज पावर्ड बाय 2 विकास इंजन विच यूजेस लिक्विड फ्यूल। ठीक है, थर्ड इज द अपरमोस्ट फाइनल स्टेज ऑफ द LMV3 इज पावर्ड बाय अ क्रायोजेनिक इंजन दैट बर्न्स लिक्विफाइड हाइड्रोजन विद लिक्विफाइड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपने ये न्यूज आइटम पढ़ा हो या आपने डेली एडिटोरियल एनालिसिस देखी हो आज 10 जुलाई वाली, तो उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। You can easily solve that particular question। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, why? Because इसमें जो S-200 boosters हैं it uses solid fuel not the liquid fuels। So the answer to this question would be only 2, that is 2 and 3 is correct। Let's see the description part। Okay, so this is the description part। Statement 1 क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये solid fuel यूज कर रहा है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। ओके, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड वाले में लिक्विड फ्यूल यूज हो रहा है और थर्ड वाले में गैसियस फ्यूल्स जिसमें लिक्विफाइड हाइड्रोजन विद लिक्विफाइड ऑक्सीजन। ओके, एंड ये थर्ड वाला जो स्टेज है ये क्रायोजेनिक इंजन से द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, लेट्स सी द
यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। LMV3 हैज 3 स्टेजेस। फर्स्ट फॉर द बॉटम मोस्ट स्टेज, इसमें S200 बूस्टर्स लगा रहे हैं, स्ट्रैप्ड ऑन द साइड्स ऑफ द रॉकेट बॉडी की साइड में, यानी यहाँ लगाते हैं। एंड इसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है दैट इज हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। सेकेंड स्टेज इज 2 विकास इंजन लगाए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें लिक्विड फ्यूल है, और कौन सा लिक्विड फ्यूल हम यूज करते हैं, आइदर नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और asymmetrical dimethyl hydrazine. Okay, so these are the two liquid fuels that can be used interchangeably. And the final stage, uppermost stage, is powered by a cryogenic engine. Okay, it combust liquefied hydrogen with liquefied oxygen. Okay, दोनों ही liquid करके उसको आप जला देते हो एक साथ, and then they produce water. Hydrogen has a very high specific impulse as rocket fuels go, but using it as an engine requires to be liquefied first, but which is in turn means it must be stored at a very low temperature with special pumping and transport system. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को लिक्विफाई करके ही हम जला पाएंगे, एंड दैट्स वाई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड. अगर आपने रॉकेटरी मूवी अगर देखी हो बाय आर माधवन, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट ओनली, ठीक है, रियल लाइफ, तो उसमें इसके बारे में और डिटेल से बात करी गई है कि हाउ व्हाट वाज द स्ट्रगल ऑफ इंडिया टू डेवलप 15 to 20 ईयर्स का स्ट्रगल था क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को बनाने का. तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, यू शुड वॉच दैट पर्टिकुलर मूवी. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इनटू द इसरो का वर्क एंड हाउ साइंटिस्ट इन इंडिया struggle a lot to evolve and innovate. Next question is इसरोज लॉन्च, इसी से रिलेटेड है क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट फर्स्ट इज ISRO has 3 classes of launch vehicles, 3 types of launch vehicles, PSLV, GSLV and SSLV. Okay, next statement, GSLV is used to launch heavier payloads and can reach higher orbits. Third is LMV3, also known as launch vehicle Mark 3, is the most powerful configuration of PSLV. ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर दे पाओगे. यू शुड रेफर टू द एडिटोरियल डिस्कशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, and you should watch that daily editorial discussion. It has very important knowledge regarding this difference also. I'll also discuss in the description section. So in this question, second statement is wrong, third statement is wrong, because LMV3 is a part of LV Mark 3 is part of GSLV, not PSLV. Okay, so answer to this question will be B. Okay, let's see the description part. Okay, so this is the explanation. Statement 1 is correct, statement 2 is also correct, statement 3 has the powerful configuration. It is a part of GSLV, not PSLV. Okay, and ISRO has 3 classes of launch vehicles. PSLV का full form हो रहा है Polar Satellite Launch Vehicle. This is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Okay, next is GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Okay, third is SSLV, यानी smallest ones. ठीक है, तो small satellite launch vehicle. So this is and PSLV is considered as the workhorse. ठीक है, this information can be asked. ठीक है, काफी फेमस है क्योंकि इसका जो फेलियर हुआ है सबसे लोएस्ट हुआ है, वेरी लो फेलियर रेट, एंड PSLV कैन लिफ्ट अप टू 3.8 टन्स ऑफ इन द लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, और थोड़ा डिटेल में इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं. प्लीज सी दिस चार्ट. ठीक है, PSLV वर्सेस GSLV, and here I am showing PSLV versus SSLV. Okay, certain parameters I am discussing. आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट याद रखने की कोशिश नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट समझना है इसका. ठीक है, तो एक तो PSLV की हाइट इट्स 44 मीटर ओनली, एंड बट जियोसिंक्रोनस की 49, एंड डायमीटर इसका दोनों का सेम है. स्टेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि PSLV में 4 स्टेजेस हैं, एंड इन द GSLV ओनली 3 स्टेजेस आर देयर. अगेन जो हमने डिस्कस किया था अभी इसके पहले, LM3 वाला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, LMV3 वाला, उसमें है. और लिफ्ट ऑफ मास, ये कितना वेट ले जा सकता है, 320 टन्स, एंड दिस कैन टेक अप टू 410 प्लस टन्स. ओके, फर्स्ट फ्लाइट इसने 93 में ली थी एंड इसने 2001 में ली थी. तो ये एडवांस्ड है, ज़्यादा लोड ले जा सकता है, ज़्यादा कैपेसिटी का है, एंड मोर एडवांस्ड. ठीक है, इट डिलीवर्स अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑफ अप टू 70-50 kg payload up to the sun synchronous polar orbits of the 600 to 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड, यानी 600 से 900 किलोमीटर की हाइट तक सन सिंक्रोनस, मतलब सन से सिंक्रोनाइज्ड जो ऑर्बिट्स रहते हैं वहाँ पे
पोलर ऑर्बिट्स में ये अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। एंड कौन कौन से एरिया में इसका यूज होता है, एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग पर्पजेस के साथ, ठीक है। और GSLV इट डिलीवर्स द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो काफी काफी हाईली इलेप्टिकल और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स होते हैं, वहां पे ले जाके ये इसको मतलब डिलीवर कर सकता है और हायर पेलोड के साथ कर सकता है। एंड यू हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी वर्सेस जियो सिंक्रोनस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप बताओगे, अगर नहीं बताते हो तो नेक्स्ट टाइम आप मेरे से रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू, ओके। नेक्स्ट इसमें जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ फ्रॉम पोल टू पोल, ओके, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसे पोलर वाइज ये जाके ऑर्बिट करते हैं। एंड GSLV क्या करता है, इट अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। ये आपको एक जगह फिक्स लगेगा, पूरी अर्थ सिर्फ मूव करती हुई दिखाई देगी, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। यहाँ पे थोड़ी सी आपको हिंट लग रही होगी रिगार्डिंग जियोसिंक्रोनस वर्सेस जियो स्टेशनरी में, बट स्टिल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक से आप जाके पढ़िए उसको एंड देन बताइए। PSLV is a 4-staged launch vehicle which with first and third stage using solid rocket motors and second and fourth using liquid, ठीक है। तो PSLV में फर्स्ट एंड थर्ड यूज करती है सॉलिड फ्यूल एंड सेकंड एंड फोर्थ यूज करता है लिक्विड फ्यूल, ओके, लिक्विड रॉकेट इंजन। एंड GSLV इज द थर्ड 3-staged इंजन जिसमें फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड के लिए फ्यूल लेते हैं लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड इज क्रायोजेनिक स्टेज, यानी लेस देन 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है एंड गैसियस फ्यूल यूज होता है जैसे हाइड्रोजन, लिक्विफाइड हाइड्रोजन, ऐसे करके। इन द नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए PSLV वर्सेस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। इसकी हाइट बहुत ही कम है क्योंकि स्मॉल है, ठीक है, ये 34 मीटर के अराउंड रहता है, ये 44। डायमीटर इसका कम है क्योंकि स्मॉल है। स्टेजेस PSLV में हाईएस्ट है जैसा बताया था, 2 सॉलिड 2 लिक्विड, बट इस केस में 3 स्टेजेस है, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में। लिफ्ट ऑफ मास इसका 320 टन है, इसका ऑलमोस्ट 1/3 है 120 टन। पेलोड कैपेसिटी इसकी 7500 तक है, 1750 तक, एंड इसकी 10 से 500 किलो के 500 किलोमीटर तक का इसका लॉन्च हो सकता है। एंड व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम, अराउंड it takes around 60 days to deliver the particular particular satellite to the orbit, and this can deliver, small satellite launch vehicle can deliver so in 72 hours. Next is first flight, ये 93 में बनाया गया था PSLV, and this SSLV was launched for the first time in 7 August 2022, यानी ये मोस्ट एडवांस्ड है, the most advanced version is SSLV with respect to the date of discovery. So this is all about quiz for the day. Hope you like our initiatives. Thank you and have a nice day.